خبریں تفصیل سے۔ علاقائی کمشنر جیتیندر پاپڑکر نے محصول پربودھنی کے کام کاج کا جائزہ لیا اور تربیتی پروگرامز کو مزید مؤثر بنانے سے متعلق ضروری ہدایات دیں۔ محصول پربودھنی کے کام کاج کا علاقائی کمشنر جیتیندر پاپڑکر نے لیا جائزہ۔ سرکاری افسران و ملازمین کو دی جانے والی تربیت میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کو فروغ دینے کی متعلقہ افسران کو دی ہدایت۔ میئر سمیر راجورکر کی صدارت میں ٹورزم مینجمنٹ کمیٹی کی اہم میٹنگ منعقد۔ اندرون آٹھ یوم ٹورزم ہیلپ ڈیسک شروع کرنے متعلقہ افسران کو میئر نے دی ہدایت۔ پیٹرولیم اشیاء کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق شہر میں گشت کرنے لگی ہیں افواہیں، گاڑی مالکان میں شدید بے چینی۔ پیٹرول ڈیزل کے اسٹاک کرنے گاہکوں کی پیٹرول پمپ پر لگنے لگی ہیں لمبی لمبی قطاریں۔ شہریان سے صبر و تحمل سے کام لینے انتظامیہ نے کی اپیل۔ اور والو صنعتی علاقے سے قریب موجود ساجا پور میں ایک اسکریپ گو ڈاؤن میں لگی بھیانک آگ، پورا علاقہ ہو گیا دھواں دھواں۔ آگ پر قابو پانے فائر فائٹرز کو کرنی پڑی سخت جدوجہد۔ آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ اس جائزہ میٹنگ میں محکمہ محصولات کے مختلف تربیتی پروگرامز کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ تربیت کو زیادہ مؤثر اور نتیجہ خیز بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کو بڑھانے کی ہدایت ڈویژنل کمشنر جیتیندر پاپڑکر نے دی۔ ساتھ ہی تربیتی عمل میں افسران اور ملازمین کی شرکت بڑھانے پر بھی خصوصی زور دیا۔ محصول پربودھنی کی جانب سے چلائے جا رہے مختلف اقدامات کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے کام کے طریقہ کار میں بہتری لا کر انتظامیہ کو مزید متحرک بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ زیر التوا کاموں کو فوری طور پر مکمل کرنے کی ہدایت بھی اس موقع پر ڈویژنل کمشنر نے دی۔ اس اجلاس میں ایڈیشنل ضلع کلکٹر سمبھاجی اڑکنے، ڈپٹی کمشنر محصولات ریتا میتریوار، ایڈیشنل ضلع کلکٹر و ڈائریکٹر مہاراشٹرا محصول پربودھنی ڈاکٹر شیش راؤ ساورگاونکر اور تحصیلدار مہیش پوار سمیت متعلقہ محکموں کے افسران و ملازمین موجود تھے۔ میونسپل اسکولوں اور ہاسپٹلس کی چھتوں پر سولار پینلز نصب کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک آف انڈیا نے اپنے CSR فنڈ سے 1,20,00,000 روپیوں کی امداد دینے کا اعلان کیا۔ اسٹیٹ بینک آف انڈیا اورنگ آباد برانچ کی جانب سے ہوٹل راما میں منعقدہ علاقائی کانفرنس میں SBI کے چیئرمین چلا سری نیواسولو شیٹی نے اعلان کیا کہ CSR کے تحت 1,20,00,000 روپئے کے منصوبے نافذ کیے جائیں گے، جس کے تحت میونسپل کارپوریشن کے 10 اسکولوں میں روف ٹاپ سولار سسٹم نصب کیا جائے گا، جس سے ان تمام اسکولوں کا بجلی کا بل صفر ہو جائے گا۔ اس مقصد کے لیے SBI نے تقریباً 48 لاکھ روپئے مختص کیے ہیں اور جلد ہی کام شروع کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ میونسپل کارپوریشن کے شعبہ صحت کے لیے تھیلیسیمیا اور سکل سیل اینیمیا کی جانچ کے لیے 4 مشینیں، 8,000 ٹیسٹنگ کٹس اور 1 سونوگرافی مشین فراہم کرنے کے لیے کل 70 لاکھ روپئے دینے کا اعلان کیا گیا۔ اس موقع پر میونسپل کارپوریشن کے محکمہ تعلیمات کے ڈپٹی کمشنر انکش پانڈرے اور میونسپل ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر پارس منڈلیچا کو نمائشی طور پر فنڈ فراہم کیا گیا۔ گزشتہ سال بھی SBI نے CSR فنڈ کے تحت میونسپل کارپوریشن کے 5 اسکولوں میں روف ٹاپ سولار نصب کیے تھے اور ان اسکولوں کا گزشتہ 1 سال سے بجلی کا بل صفر آ رہا ہے۔ یہ اطلاع ڈپٹی میونسپل کمشنر انکش پانڈرے نے دی۔ اس موقع پر SBI کے علاقائی مینیجر چندر شیکھر تریبھون اور شہر و ضلع کے تمام SBI مینیجرز موجود تھے۔ مہاراشٹر ودھان پریشد کے اپوزیشن لیڈر و شیو سینا ادھو گروپ کے سینئر قائد امباداس دانوے نے ریاستی حکومت پر سخت الفاظ میں تنقید کرتے ہوئے الزام لگایا کہ حکومت مفرور ملزموں کو پناہ دے رہی ہے۔ مہاراشٹر ودھان پریشد کے سابق اپوزیشن لیڈر اور شیو سینا ادھو گروپ کے سینئر قائد امباداس دانوے نے کہا کہ آخر حکومت واقعی کارروائی کر رہی ہے یا ملزموں کو تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے حکومت پر شدید حملہ کرتے ہوئے
मफरूर मुलजिमों पर कई सवालात उठाए। उन्होंने वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के सख्त कार्रवाई के दावों को भी निशाना बनाया और कहा कि हकीकत में मुलजिम आज़ाद घूम रहे हैं। नासिक के लौ जिहाद केस, भोंदू अशोक खरात मामला, संतोष देशमुख केस और महादेव मुंडे केस का हवाला देते हुए दानवे ने कहा कि इन तमाम मामलात के मुलजिम अब तक मफरूर हैं। उन्होंने तफ्तीशी एजेंसियों की कारकर्दगी पर भी सवाल उठाए और कहा कि आया मुलजिम खुद फरार हुए हैं या उन्हें सरकारी सतह पर सेफ पैसेज दिया गया है। इस बयान के बाद रियासत में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। टूरिज़्म की राजधानी कहलाए जाने वाले शहर औरंगाबाद में सयाहत को फ़रोग़ देने की गर्ज से आज मेयर समीर राजूरकर की सदारत में टूरिज़्म मैनेजमेंट कमेटी की अहम मीटिंग मुनक़िद की गई, जहां कई अहम फ़ैसले लिए गए। मेयर समीर राजूरकर की सदारत में मुनक़िदा इस मीटिंग में उन्होंने हिदायत दी कि शहर में सयाहों की सहूलत के लिए आइंदा 8 दिनों के अंदर एक खुसूसी टूरिज़्म हेल्प डेस्क कायम किया जाए। इस हेल्प डेस्क के लिए शहर में मौजू मकाम का इंतखाब किया जाएगा और वहां सयाहों की रहनुमाई के लिए महकमे सयाहत के ज़रिए खुसूसी तरबियत याफ्ता गाइड्स की तकर्री की जाएगी। इस मीटिंग में डिप्टी मेयर राजेंद्र जंजाड़, अपोजिशन लीडर समीर अब्दुस्साजिद, एडिशनल कमिश्नर रंजीत पाटिल और डिप्टी कमिश्नर अंकुश पांड्रे समेत दीगर अहम ओहदेदारान मौजूद थे। इसके अलावा तकनीकी और माहिरीन की रहनुमाई के लिए सामर्थ प्रतिष्ठान के दुष्यंत पाटिल, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के शोबे सयाहत की सरबराह डॉक्टर माधुरी सावंत, इंटेक के संकेत कुलकर्णी और आदित्य वाघमारे, महकमे सयाहत के डिप्टी इंजीनियर अभिषेक मुदिराज, एमटीडीसी के टूरिज़्म ऑफिसर शोएब शाह, छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूज़ियम के डायरेक्टर श्री प्रकाश पवार, टूरिज़्म एक्सपर्ट सारंग टाकलकर और स्मार्ट सिटी के आर्किटेक्ट स्नेहा बख्शी समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ शहरियान मौजूद थे। मीटिंग के दौरान शहर में सयाहत के फ़रोग़ के लिए कई अहम पॉलिसी फ़ैसले किए गए। ख़ास तौर पर तारीख़ी इमारतों और क़दीम नवादिरात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से फ़ौरी तौर पर एक जदीद कंज़र्वेशन लैब कायम करने के लिए मंजूरी दी गई। इसी के साथ आवाम में तारीख़ी मकामात की अहमियत उजागर करने के लिए बाकायदगी से हेरिटेज वॉक मुनक़िद करने का मंसूबा भी तैयार किया गया। मज़ीद बराह शहर के तारीख़ी मकामात, तहक़ीक़ी मराकज़ और अजायब घरों की हमाजहत तरक्की के लिए माहिरीन की कमेटी के ज़रिए नई पॉलिसी वज़ा करने का अज़्म भी इस मीटिंग में ज़ाहिर किया गया, जिससे शहर की मजमूई शक्ल व सूरत में नुमाया बेहतरी लाने की उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है। फार्म टुरिझमचं आम्ही 100 महिलांचे करतो, तर तसे काही आम्ही तर ट्रेनिंग देतो, वी आर कंटिन्युअसली टीचिंग। तर ट्रेनिंग मध्ये आम्ही काय करू शकतो, तर वी आर डेफिनेटली व्हेरी हॅपी आणि कॉंग्रॅच्युलेशन सर, आम्हाला बोललो, आपण ही कमिटी केली आणि आम्हाला बोलवलं आणि आमची मत मांडण्याचं आम्हाला हे केलं। आता त्याच्यामध्ये काय करा पांडे साहेब, त्यांचं जे तयार केलंय संगीतराव, तर एक दिवस विद्यापीठात प्रेझेंटेशन ठेवा आणि तुम्ही कमिटी जाऊन बघा। समजा आम्ही असलो नसलो तरी आम्ही पण येऊ, समजा त्या दिवशी काही जंक असलं तर ते कॅरी ऑन ठेवा। आणि मला असं वाटतं सगळ्या स्टेक होल्डरनी येऊन बघायला पाहिजे आणि गिव्ह युअर इनपुट्स अँड क्रिटिकली एनालाइज इट। नाही माझं सही नाही। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की पुरानी इमारत पर गुज़िश्ता रोज़ राब्ता वज़ीर संजय शिरसाट ने एक मुतनाज़ा बयान दे डाला, जिस पर पूरी रियासत में अब सियासत गर्म होने लगी है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ डीपीडीसी फंड से ख़रीदी गई जदीद सहूलतों से आरास्ता फायर टेंडर मशीनों की इफ्तिताही तकरीब से ख़िताब करते हुए रियासती वज़ीर संजय शिरसाट ने एक मुतनाज़ा बयान देते हुए कहा कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की इमारत जिस जगह पर मौजूद है वहाँ पहले कब्रस्तान था, इसलिए म्यूनसिपल इमारत को किसी और जगह मुंतकिल किया जाना चाहिए। उनके इस बयान पर इम्तियाज़ जलील ने तंज़िया अंदाज में सवाल उठाया कि जब गुज़िश्ता 30 से 35 साल से यहाँ काम चल रहा था तब ये बात क्यों नज़र नहीं आई। म्यूनसिपल दफ्तर की ज़मीन पर सियासी तनाज़ा ज़ोर पकड़ता जा रहा है। इम्तियाज़ जलील ने कहा कि 30-35 साल से उन्हें ये क्यों याद नहीं आया और सिडको N12 से कचरा डिपो हटाकर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की दफ्तरी इमारत इस ज़मीन पर तामीर करवाई जाए।
اس معاملे पर अब सियासी बयानबाजी तेज़ हो गई है और आने वाले दिनों में ये तनाज़ा मज़ीद बढ़ने के इम्कानात हैं। भविष्यामध्ये मला असं वाटतं की ही महानगरपालिकेची एक चांगली इमारत, वाढतं शहर पाहून ही इमारत पंचवटी सारख्या ठिकाणी जर भागात जर असेल, एक मोठी प्रशस्त बिल्डिंग त्या ठिकाणी असेल किंवा हेडक्वार्टर टाकायची, जो चांगला स्पॉट असेल तुम्ही ते डिसाईड करा. आणि हे जे भाग आहे, खरं तर या महानगरपालिका ग्रहण लागण्याचं कारणच असं आहे की इथं सगळे मुद्दे काढायचे. कब्रस्थानाचा हा भाग असल्यामुळं इथलचे सगळे आत्मे कधी कधी तुम्हाला डिचवतात आणि तुम्ही त्याच्यामुळे बेचैन होतात असं माझा समज आहे. म्हणून याच्यातून आता मुक्ती आपल्याला पाहिजे असेल तर ही बिल्डिंग चांगल्या ठिकाणी करा. एक चांगलं शहर हे झालं पाहिजे, यासाठी या आत्म्याला सुद्धा सुटका मिळेल आणि तुम्हालाही सुटका मिळेल. म्हणून चांगली बिल्डिंग झाली पाहिजे. फंड तुम्हाला पाहिजे असेल तेवढा देण्याची ताकद आमच्यात आहे. सरकार तुमच्या पाठीशी आहे. अच्छा, 30-35 वर्ष मला असं वाटतेच की हेच नेते जे आहे ना त्या महानगरपालिकेमध्ये बसायचे. आता मोठे नेते झालेले आहे, तर त्यावेळी कब्रस्तान त्यांना दिसलं नाही होतं का? ठीक आहे, मीही त्यांच्याशी हे सहमत आहे की ही जागा अपुरी पडत आहे. आपल्या N12 मध्ये जिथे या लोकांनी गुजराती कंपनीला आणून तिथे कचऱ्याचा डिपो आणलेला आहे, ते कचऱ्याचा डिपो हटवा आणि तिथे एक चांगली महानगरपालिकाची खूप मोठी भव्य इमारत तिथे उभे करा. मीही या नेत्यांना समर्थन करणार याच्या बाबतीत. 1 जनवरी 2011 से पहले के सरकारी ज़मीनों पर के कब्ज़ाजात को रेगुलराइज करने के लिए दरख्वास्त दही की मियाद में तोसी की गई है और अब 31 दिसंबर 2026 तक मुतल्लिक़ा अफराद दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं. ये इत्तला ज़िला इंतज़ामिया से मौसूल हुई है. ज़राए के मुताबिक ये फ़ैसला 1 जनवरी 2011 से पहले के रिहायशी कब्ज़ों के लिए लागू होगा. ज़िला कलेक्टर विनय गौड़ा GC ने अहल शहरियान से अपील की है कि वो मुकर्ररा मुद्दत के अंदर अपनी दरख्वास्तें दाखिल करवा दें. सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ों को रेगुलर करने की मोहलत में हुकूमत ने तोसी की है और अब दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख़ 31 दिसंबर 2026 मुकर्रर की गई है. उन्होंने मज़ीद बताया कि सिर्फ 1 जनवरी 2011 से पहले के कब्ज़े ही इस स्कीम के लिए अहल करार दिए जाएंगे. शहरी और देही इलाक़ों के लिए अलग निज़ाम होगा. ये अमल महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड 1966 और मुतालिका क़वानीन के तहत अंजाम दिया जाएगा. शहरी इलाक़ों में म्यूनसिपलिटी के वार्ड ऑफिसर्स और म्यूनसिपल कमिश्नर के ज़रिए जांच होगी, जबकि देही इलाक़ों में ग्राम सेवक और तहसीलदार इस अमल को अंजाम देंगे. ये सहूलत सिर्फ ज़ाती रिहायशी कब्ज़ों के लिए होगी और वही कब्ज़े बाकायदा किए जाएंगे जो 1 जनवरी 2011 से पहले के हैं और अब भी मौजूद हैं. रियासत के कई शहरी और देही इलाक़ों में सरकारी और गैरान ज़मीनों पर बड़े पैमाने पर रिहायशी कब्ज़े मौजूद हैं, जिसके पेश नज़र सबके लिए घर पॉलिसी के तहत ये फ़ैसला लिया गया है. दरख्वास्तों की वसूली और जांच के लिए मुख्तलिफ़ सतहों पर कमेटियां तश्कील दी गई हैं और हतमी फ़ैसला मुतल्लिक़ा अफसरान की सदारत में किया जाएगा. इस फ़ैसले से हज़ारों ज़रूरतमंद ख़ानदानों को राहत मिलने की उम्मीद है. ST इंतज़ामिया ने गुज़िश्ता कल से बसेस के किरायों में 10% का इजाफ़ा कर दिया है, जिसकी वजह से आम आदमी की जेबों पर मज़ीद माली बोझ पड़ने लगा है. नाजरीन, ST इंतज़ामिया की जानिब से बस किरायों में 10% का इजाफ़ा कर दिया गया है, लेकिन पहले ही से महंगाई का सामना कर रहे अवाम के लिए ये इजाफ़ा एक बड़ा झटका माना जा रहा है. ख़ास तौर पर रोज़ाना सफ़र करने वाले तलबा, मज़दूर और मुलाज़मीन इससे ज़्यादा मुतासिर होने का इम्कान है. औरंगाबाद समेत पूरी रियासत में ये किराया इजाफ़ा लागू हो चुका है, जिसके तहत तवील और मुख्तसर दोनों रूट्स के टिकट महंगे हो गए हैं. नागपुर, मुंबई, पुणे, नासिक और औरंगाबाद जैसे अहम रूट्स पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों को अब ज़्यादा रकम अदा करनी पड़ रही है. ST इंतज़ामिया के मुताबिक डीज़ल की बढ़ती कीमतें, देखभाल के अखराजात और दीगर ऑपरेशनल खर्च में इजाफे की वजह से ये फ़ैसला लेना पड़ा है. कुछ रूट्स पर एक्सप्रेस और स्लीपर बसेस के किरायों में भी नुमाया इजाफा हुआ है, जिस पर मुसाफिरों ने नाराज़गी ज़ाहिर की है और सवाल उठाया है कि ये इजाफा अचानक क्यों किया गया. इंतज़ामिया का कहना है कि ये इजाफा नागुज़ीर था
تاہم اس فیصلے سے ایک بار پھر عام آدمی کی جیب پر اثر پڑنے لگا ہے۔ شہریان کو بنیادی سہولتوں کی فراہمی اور غیر قانونی طریقے سے بلڈوزر کارروائی کیے جانے کے خلاف ایس ڈی پی آئی کی جانب سے آج میونسپل کارپوریشن دفتر پر زوردار احتجاج کیا گیا۔ شہر میں شدید پانی کی قلت، غیر قانونی بلڈوزر کارروائی، کچرا مسئلہ، سڑک و ڈرینیج نظام کی خراب حالت اور دیگر عوامی مسائل کے خلاف آج سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کی جانب سے میونسپل کارپوریشن کے داخلی دروازے کے سامنے زوردار احتجاج کیا گیا۔ اس موقع پر پارٹی کی جانب سے الزام لگایا گیا کہ اورنگ آباد شہر انتظامیہ اس وقت ناکامی اور عوام مخالف پالیسیوں کے سنگین بحران سے گزر رہی ہے۔ شہر کے کئی علاقوں میں کہیں 10 دن تو کہیں 14 دن بعد پانی کی فراہمی ہو رہی ہے، جس کے باعث شہریان کو شدید پانی کی قلت کا سامنا ہے۔ ایک طرف پانی کی کمی ہے تو دوسری طرف بغیر کسی پیشگی اطلاع یا باضابطہ کاری کے غریب اور ضرورت مند افراد کے گھروں اور چھوٹی دکانوں پر غیر قانونی طریقے سے بلڈوزر کارروائیاں جاری ہیں۔ اس کے علاوہ شہر میں کچرا مینجمنٹ کا نظام مکمل طور پر درہم برہم ہو چکا ہے۔ سڑکوں اور ڈرینیج سسٹم کی حالت نہایت خستہ ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے برسات کے موسم میں پانی جمع ہونے، مچھروں اور بیماریوں کے پھیلنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ شہر کی مجموعی ترقی کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اور ہاکرز کے لیے علیحدہ زون بنانے میں بھی تاخیر کی جا رہی ہے۔ ان مسائل کے حل کے لیے آج میونسپل کارپوریشن کے داخلی دروازے کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے انتظامیہ کے خلاف جم کر نعرے بازی کی گئی اور فوری طور پر مسائل حل کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ مظاہرین میں سید کلیم، سمیر شاہ، محسن خان، علیم شیخ، ریاض سوداگر، مشتاق شیخ، ساجد پٹیل سمیت سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کے عہدیداران اور کارکنان بڑی تعداد میں شامل تھے۔ 3 مہینے ہو گئے ایک نئے مہاپور کو نیوکت ہوئے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اورنگ آباد کے اندر 15 دن پانی نہیں آ رہا ہے۔ 15 دن تک یہ اورنگ آباد کی جنتا پیاسی ہے، کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 15 دن تک پانی نہیں آ رہا ہے۔ ہمارے پاس ایک جیکوٹی ڈیم، اتنا بڑا ڈیم ہے، اگر ہم روز بھی پانی دیں گے تو یہ اورنگ آباد کی جنتا کو پانی پورے گا۔ تو یہ پانی کہاں جا رہا ہے؟ یہ کارپوریٹ کمپنیوں کو پانی دیا جا رہا ہے یا یہ پانی کی چوری کی جا رہی ہے؟ کیوں پبلک کو پریشان کیا جا رہا ہے؟ ڈرینیج کا پانی زیادہ آ رہا ہے نل کے پانی سے زیادہ۔ سڑکیں ہماری دیکھیں گے کھڈے ہیں پورے، اور بلڈوزر کارروائی کا تو دیکھیں گے کہ پرشاسن پبلک کے ایک جانی دشمن لگ رہے ہیں۔ بلڈوزر کارروائی ایسی طریقے سے ہو رہی ہے جیسے پبلک ان کی جانی دشمن ہے، بہت ان کا کچھ لے کر کھائی ہے پبلک نے۔ چھوٹے چھوٹے بیپاریوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، بلڈوزر سے ڈرایا جا رہا ہے، غریب پبلک کو بلڈوزر سے ڈرایا جا رہا ہے۔ ایس ڈی پی آئی کی مانگ ہے بلڈوزر کارروائی صحیح ہونا چاہیے۔ سڑکیں صحیح نہیں ہے، کچرے کا مسئلہ آ رہا، ایک نارمل سویدھا آپ دے نہیں پا رہے جنتا کو، پتلوں کا کیا کریں گے آپ؟ اور اس کے بیچ میں انل مکرے جو سبھاپتی ہے، کس نے بنا دیا ان کو سبھاپتی؟ ایک بی جے پی کے سبھاپتی، ان کو اتنا سینس نہیں ہے۔ اورنگ آباد نام بولیں گے تو ہم آپ کو ندھی نہیں دیں گے، فنڈ نہیں دیں گے، تمہارے باپ کا ہے فنڈ، یہ پبلک کا فنڈ ہے، پبلک کا 1-1 روپے کا ٹیکس ہے، تمہارے باپ داداؤں نے وہ فنڈ نہیں دیے۔ تو ہماری یہی مانگ ہے، پانی 6 سے 7 دنوں کے اندر آنا چاہیے، ڈرینیج کا صحیح سسٹم ہونا چاہیے۔ جو سینٹرل گورنمنٹ نے بھی جو ڈرینیج دی ہے وہ ناکافی ہے، اتنی چھوٹی ہے کہ ابھی سے وہ ڈیمیج ہونے لگ رہی ہے، پرانی ڈرینیج آلریڈی ڈیمیج ہے۔ تو یہ بور کے اندر لوگوں کے گھر کے اندر پانی آ رہا ہے، تو یہ کدھر پرشاسن جا رہا ہے؟ تو ہمارا ایک ڈیمانڈ ہے کہ بہترین طریقے سے اورنگ آباد شہر ہمارا ڈیولپ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد میں آپ پتلے دیکھیے، الاقصی ٹورز اینڈ ٹریولز کے ذریعے عمرہ کی ادائیگی کے بعد 70 زائرین گزشتہ شام بحفاظت وطن لوٹ آئے۔ ناظرین، ان دنوں خلیجی جنگ کے اثرات پوری دنیا پر دیکھے جا رہے ہیں، بالخصوص پیٹرولیم ایندھن پر چلنے والے کاروبار بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں۔ ایویشن کا شعبہ بھی اسی زمرے میں شامل ہے اور خلیجی جنگ کے بعد تقریباً تمام فضائی کمپنیوں نے کرایوں میں بے تحاشا اضافہ کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں عمرہ زائرین کو مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ پرائیویٹ ٹور کمپنیوں کے مالکان بھی اس پریشانی سے دوچار ہیں۔ اطلاع کے مطابق بعض ٹور آپریٹرز نے ان حالات کے پیش نظر زائرین سے اضافی چارجز کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ بھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ کچھ ٹور آپریٹرز نے اضافی رقم ادا نہ کرنے والے زائرین کو
वहीं बेयार व मददगार छोड़ दिया है, जिससे उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा हुआ है। ऐसे नाजुक हालात में अल-अक़सा टूर एंड ट्रैवल्स के मालिक शेख मोहम्मद वसीम ने अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी निभाते हुए अपने तयशुदा पैकेज के मुताबिक ही ज़ायरीन को उम्रा अदा करवाया। उन्होंने वहाँ हर लिहाज से उनका ख़ास ख्याल रखा। खाने पीने और ठहरने के इंतज़ामात बेहतर से बेहतर करवाने की कोशिश की और गुज़िश्ता शाम 70 आज़मीन बहिफाजत वतन वापस लौट आए। वापस आने वाले ज़ायरीन के चेहरों पर खुशी नुमायाँ थी और जब हमने उनसे बात करना चाही तो उन लोगों ने टूर ऑपरेटर मोहम्मद वसीम और उनके साथियों की तारीफ़ करते हुए उनके हक़ में ढेर सारी दुआ की। अल-अक़सा टूर्स एंड ट्रैवल्स के मालिक शेख मोहम्मद वसीम ने बताया कि मुहर्रम और सफ़र 2026 के लिए उम्रा बुकिंग जारी है, लिहाजा ख्वाहिशमंद अफराद अल-अक़सा टूर्स एंड ट्रैवल्स के सिटी चौक में वाक़े दफ्तर पर राब्ता कायम करें और अपनी नशिस्त बुक करवा लें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टूर बहुत अच्छा रहा और सर्विस और फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी इन्होंने हमको। और मक्के में तो अच्छी होटल मिली और मदीने में बहुत अच्छी होटल मिली कि मस्जिद नबवी से थोड़ा 10 कदम की दूरी पर ऐसे होटल थी वो। और माशाल्लाह फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं इनकी। और अगर आपको आना है तो आपको इनसे कांटेक्ट जरूर करना पड़ेगा और बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है। ऐसी फैसिलिटीज़ आपको पूरे औरंगाबाद में कहीं नहीं मिलेंगी। और माशाल्लाह मैं कंटिन्यू उनके टच में था, सर्विसेज इस उम्रे की कैसी है। उन्होंने हर वक्त मुझे ये कहा कि इस जो टूर की सर्विस है सबसे बेस्ट है अल-अक़सा टूर की, क्योंकि तकरीबन बहुत सारी न्यूज़ ऐसी आ रही थी कि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही काफ़ी सारे लोगों को। तो मेरे को ये डर था कि हमारे भाई को कुछ परेशानी ना हो। तो मैंने उनको जितने बार कहा तो उन्होंने बोले कि भाई आप ये चीज़ से बेफिक्र रहिए कि हमारे को टूर की तरफ से बहुत अच्छी सर्विस मुहैया की गई है। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। नहीं अलग से इंशाल्लाह अगली बार जाएंगे तो हम भैया वगैरह सब अलग से जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि कॉर्पोरेट बहुत अच्छा करे अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने। दाऊद भाई ने करे, हमें दानिश भाई है, वसीम भाई है, बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कॉर्पोरेट करे हमारे। हाँ बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी होटल भी अच्छी मिली थी हमारे को अल्हम्दुलिल्लाह। मदीना के पास भी नहीं कुछ नहीं कुछ चीज़ पता ही नहीं चला, ऐसा कुछ जंग का कुछ मालूम ही नहीं पड़ा ऐसा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, हर चीज़ की तो कोई तकलीफ नहीं आई है हमें। जो यहाँ से जो उन्होंने बॉम्बे एयरपोर्ट से जो लेके गए और जो होटल में उन्होंने ठहराया, एक नंबर होटल में ठहराया, खाना पीना से लेके हर चीज़ में उन्होंने हम लोग की अच्छी सहूलत दी है उन्होंने को। एक नंबर अल-अक़सा वाला एक नंबर काम अच्छा है। और लोगों ने हर जितने भी जो बंदे लोग हम लोग गए थे उन लोगों को अच्छे से लोगों ने ट्रीट किया है। खाने से लेके हर चीज़ का हम लोग अच्छा किया है। रूम हो हम लोग का जो रूम है, उसके बाद में वहाँ के जो हम लोग उम्रा जो 4 उम्रा उन्होंने कराए, वो 4 उम्रा भी हम लोग अच्छे से उन्होंने कराए। और उसके अलावा हमारा अस्सलाम वालेकुम। अल-अक़सा टूर से हम उम्रा के लिए गए थे। माशाल्लाह से 15 दिन का टूर था, जिसमें हमें खाने की बेहतरीन जियारत वगैरह हर चीज़ करवाई गई। कोई सर्विस में इतनी बेहतरीन तरीके से की गई, कोई शिकायत का मौका ही नहीं मिला। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने दाऊद भाई, वसीम भाई और है ना दानिश भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला उनको और कामयाबी दे कि उन्होंने एक भी शिकायत का मौका नहीं दिए और हर चीज़ की जियारत, हर चीज़ की सहूलत जो रहती है वो हमें फराहम कराई गई। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज जबरदस्त रही, कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। जहाँ मतलब हमको खाने का अगर समझो कभी लेट हो गए तो दाऊद भाई ने हमको अरेंजमेंट करके दिए खाने के ताल्लुक से। कभी 10 पैसे की भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अल्लाह फजल करम से जबरदस्त इंतजाम रहा। इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में हमको अगर किसी ने कहा हमारे फैमिली में तो हम पहले उनको अल-अक़सा को अप्रोच करो बोलेंगे। जिस तरीके का सफर था वो पता करते हैं, बताइए कैसा सफर रहा? अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा। आप बताइए सर। सफर एकदम बेहतरीन रहा। सऊदी एयरलाइंस रही और जाने में भी आने में भी, और जितने हमारे साथ में साथी थे अल-अक़सा के टीम ने और उनके ग्रुप ने बहुत बड़ा कोऑपरेट करा और काफी हद तक के हर चीज में मेडिकल से लेके खाने से लेके सारे ज़ियारतें, सारी चीजों के मकामात हालत खराब होने के बावजूद भी। अदर टूर के बारे में नहीं बोलूँगा, मगर अक्सा ने पूरा अरेंजमेंट करके टाइम से लेकर भी गए और टाइम से लेकर काफी लोग शिकायत आती है टूरिस्ट के बारे में, जैसे टूरिस्ट ट्रैवल जो चलाते हैं उनके बारे में। पर मुझे बताइए कि यहाँ पर आपके बारे में, मतलब ये टूरिस्ट के बारे में आपका क्या पेशकश कहना चाहेंगे आप परिवार के बारे में? अल-अक़सा टूर के बारे में यही बताऊँगा कि ये 2005 से साइंस है इनका और आज तक के सक्सेसफुल गए हुए और हर हाजी को उन्होंने कोऑपरेट किए। आने वाले जाने वाले को भी अखराजात की परवाह नहीं करे उन्होंने, बट दूसरों के लिए उन्होंने हाजियों की
खिदमत या सेवा के लिए पूरा कॉपरेशन मिला। नहीं, मैं तो बहुत सारे हाजी लोगों से सुना हूँ कि टिकट के पैसे जो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, दूसरे टूर्स वाले बता रहे हैं कि टिकट के जो एक्स्ट्रा पैसे लगे देना पड़ेगा, लेकिन वसीम भाई ने हमसे ये बारे में कोई बात ही नहीं की है। वसीम भाई का बोलना है कि टिकट बड़ा है, हमको लगा है, हमारी जिम्मेदारी है, हमसे तो कोई लिए नहीं, जो यहाँ से वायदा करे तो वही टिकट में वही पैसों में हमको वापस लेके आए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काफिला भी अच्छा था, साथ वाले हाजी लोग भी अच्छे थे। और अभी तो कैसा हो गया, वार की वजह से, जंग की वजह से रिटर्न की टिकट बहुत महंगी हो गई। हर टूर वाला वन वे से ले जाता है, उसमें सहूलत होती टूर को, लेकिन अभी रिटर्न की टिकट जो है तो 50-55 हज़ार में हो गई थी। उसके बावजूद हमने हाजी से कोई पैसा नहीं मांगे एक्स्ट्रा। सर्विस भी अच्छी दी है उनको, डायरेक्ट फ्लाइट थी, सऊदी एयरलाइंस थी, रिटर्न में भी जाने में भी, और बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। फीडबैक देखिए आप लोग ने, हाजी लोग। ये था 15 दिन का टूर था, ये गया था 30 तारीख को, इसके पहले गया 27 तारीख को, जो आएगा इंशाल्लाह 18 तारीख को, वो 22 दिन। नहीं, दोनों टूर आने वाले हैं। नहीं, अब वो जो है हज का ही जाएगा इंशाल्लाह 18 मई को। 142 आदमी रहेंगे उसमें हाजी लोग। हमारा नंबर ऑफिस है सिटी चौक पुलिस स्टेशन के सामने, अलक्सा टूर्स एंड ट्रैवल। मेरा नंबर है 8055355577। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद हाजी इसहाक खान ने बुनियादी सहूलतों की फरहमी और किराड़पुरा इलाके में तरक्याती काम करवाने के मतालबे पर 17 अप्रैल को रास्ता रोको एहतजाज करने का इंतबाह दिया था, लेकिन इंतज़ामिया के ठोस तयक़ुन के बाद ये एहतजाज वापस ले लिया गया। वाज़ेह रहे कि ब्लॉक नंबर 12B की कारपोरेटर सुमैया निसार खान के नुमाइंदे व MIM लीडर हाजी इसहाक खान ने गुज़िश्ता दिनों एक मेमोरेंडम पेश करते हुए मतालबा किया था कि किराड़पुरा इलाके के मसाइल फौरी तौर पर हल किए जाएँ। बसूरत दीगर 17 अप्रैल को वो रास्ता रोको एहतजाज करेंगे। तहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से इसका फौरी नोटिस लेते हुए मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी के बाद गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने अपना ये एहतजाज वापस ले लिया। उन्होंने MCN को बताया कि गुज़िश्ता रोज़ वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वसंत भोए, डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर नंद किशोर भोंबे, MJP के अफसरान और दीगर मुतालिका हुक्काम ने किराड़पुरा इलाके का दौरा करके ज़मीनी सूरत हाल का जायज़ा लिया। इस दौरान सड़कों की मरम्मत, सफाई और स्ट्रीट लाइट्स के मसाइल फौरी हल करने की यकीन दहानी कराई गई। साथ ही पानी की फराहमी के वक्फे को 11 दिन से कम करके 6 दिन करने का भी वादा किया गया। इन यकीन दहानियों के बाद 17 अप्रैल का रास्ता रोको एहतजाज मनसूख कर दिया गया है। अब आवाम की नज़रें इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर मरकूज़ हैं। देखिए, हमने पिछले 7 तारीख को महानगर पालिका कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर साहब को एक लेटर दिया था। हमारे पास में कचरे का विषय था और सबसे ज़्यादा अगर जो विषय था वो पानी का विषय था। पानी का विषय में हमारा गंदा पानी बहुत आ रहा था, क्योंकि ये जो लाइन है किराड़पुरे की मेन लाइन जो है ये 40 से 45 साल पुरानी है। कहीं ना कहीं इसको हमने मंजूरी भी कराए थे, 2 से 3 साल हो गए थे, पर MGP के तरफ ये पूरा देवा था कारोबार। तो MGP ने आज करते, 2 दिन से करते, 4 दिन से करते, पर हमने जब अपने 7 तारीख को लेटर देने के बाद में महानगर पालिका ने उसके इन्हें ध्यान दिया, देखे, और भोई साहब के नेतृत्व में हमारी एक मीटिंग कराए। आज एक मीटिंग हुई भोई साहब के इसमें, और कमिश्नर साहब से भी बात हुई। उन्होंने कहा कि भाई हम आपका जो मसला है, जो आप जो डिमांड कर रहे हैं, वो हम आपको काम करके देते। उन्होंने उनके साथ में उनके MGP, PUR की कंपनी और दूसरे जो एजेंसी है, वो एजेंसी के लोगों को साथ में लाए, यहाँ सर्वे कराए, और इनका साहब का कहना है कि भाई हम तुम्हारे को 8 दिन में हम यहाँ पे पूरा नई लाइन डाल के दे रहे, नया काम करके दे रहे। हमने इनको कहा कि 8 दिन नहीं, हमसे 9 दिन लो, पर काम करके दो। अगर इसके बावजूद भी अगर काम नहीं होता तो हमने जो ये जो पत्र दे हुए
कि हम उसका अगली डेट देके हम उसको पे रास्ता रोका, फिर ना हम कमिश्नर साहब की सुनेंगे ना हमारे भाई साहब की सुनेंगे। पर उम्मीद है कि ये भाई साहब और ये टीम हमको ये करने की नौबत नहीं लगाएंगे। और हम अभी ये जो प्रोग्राम हमने जो 7 तारीख का जो ये 17 तारीख का जो रखे थे, अभी हमने पोस्टपोन करे, कैंसल नहीं करे, पोस्टपोन करे। पोस्टपोन ये इसलिए करे क्योंकि महापालिका के जो भोमे साहब है घन कचरा अधिकारी, उनसे भी हमारी आज मीटिंग हुई। उन्होंने भी कहा कि भाई हम तुम्हारे को 20 से 21 तारीख के दिन 21 तारीख तक जो पानी का जो मसला, अपने कचरे का जो मसला है, वो पूरा हम आपको सॉर्ट आउट करके देंगे, पूरा क्लियर करके देंगे। उसी के साथ साथ भोई साहब से भी आज उनके ऑफिस में मीटिंग है, उन्होंने हमारे को यहाँ पे लाए, इनके अधिकारी को लाए, पूरे किराड़पुरे का पूरा सर्वे कराए और ये उन्होंने कहा कि भाई 8 से 9 दिन में हम तुम्हारा काम इंशाल्लाह पूरा करके देंगे। तो आज मैं भोई साहब का भी शुक्रिया अदा करता, कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करता, भोमे साहब का शुक्रिया अदा करता और ये MGP को भी मैं एक बुद्धि दो करके अल्लाह ताला से ये करता कि भाई ये जल्द से जल्द इन्हों हमारा काम करके दे करके। पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफे से मुताल्लिक़ अफवाहों के सबब शहरियान में शदीद बेचैनी पाई जा रही है और एक बार फिर पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगने लगी हैं। नाजरीन, एक बार फिर पेट्रोल महंगा होने की अफवाह शहर में फैली हुई है, जिसकी वजह से पेट्रोल पंप्स पर ग्राहकों की भीड़ दिखाई दे रही है और उनमें शदीद बेचैनी पाई जा रही है। गुज़िश्ता रात से ही शहर के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं, जहां शहरियान जल्द अज जल्द ईंधन भरवा रहे हैं। कई मकामात पर इसकी वजह से ट्रैफिक जाम की सूरत हाल भी पैदा हो गई है। ताहम सरकारी सतह पर ईंधन की कीमतों में इजाफे के हवाले से कोई बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया है। इंतज़ामिया ने शहरियान से अपील की है कि वो सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और किसी भी किस्म की अफवाह पर यकीन न करें। अफवाहों के इस दौर में शहरियान से ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करने की उम्मीद की जा रही है ताकि गैर ज़रूरी अफरा तफरी से बचा जा सके। मसीहा और एजुकिरन इंटरनेशनल के इश्तराक से यूरोपियन फंडिंग और भारत यूरोप आज़ादाना तिजारत से मुताल्लिक़ सनतकारों की रहनुमाई के लिए एक कामयाब सेशन मुनक़िद किया गया। वाज़ेह है कि औरंगाबाद में MSMES के लिए यूरोपीय फंड और भारत यूरोप आज़ाद तिजारती मुआहदे के मौक़े पर मसीहा और एजुकेरन इंटरनेशनल के इश्तराक से एक खुसूसी सेशन नहायत जोश व खरोश के साथ मुनक़िद किया गया। मराठवाड़ा एसोसिएशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एंड एग्रीकल्चर की जानिब से MSMES के लिए यूरोपीय फंडिंग और इश्तराक के मौक़े के मौजू पर मुनक़िदा इस सेशन को सनतकारों की जानिब से भरपूर ताउन मिला। इस मौके पर एजुकेरन इंटरनेशनल के CEO किरण वैष्णव ने हॉरिज़न यूरोप EU फंडिंग और भारत यूरोप FTA के हवाले से हाज़रीन की तफसीली रहनुमाई की। इसी तरह स्पेन के शहर बार्सिलोना से इटालियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की डिप्टी डायरेक्टर फादिया खरीसाता ने ऑनलाइन खिताब करते हुए EU इंडिया 2030 एजेंडे के बारे में मालूमात फराहम की। इस प्रोग्राम में मसीहा के सदर अर्जुन गायकवाड़, नायब सदर राहुल मोगले, सेक्रेटरी दिलीप चौधरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी रमाकांत पलकंदवार और एग्जीक्यूटिव मेंबर मंगेश नटवरकर भी मौजूद थे। इसके अलावा सनतकार उदय देशमुख, आलिश सांतरे, जनार्दन अवताड़े, ऋतुजा शिंदे, वैजनाथ घड़लिंग, सुनील पंडित, सविता पंडित, नेज, महकमे सयाहत के शिवाजी गायकवाड़ और शेख अजीमुद्दीन समेत कुल 27 अराकीन ने शिरकत की। शुरका ने इस सेशन के ज़रिए MSMEs के लिए बैनुल अक़वामी इश्तराक, टेक्नोलॉजी की मुंतकली और बरामदात में इजाफे के मौक़े से मुताल्लिक़ अहम रहनुमाई हासिल होने पर इत्मीनान का इजहार किया। जालना शहर में आवारा कुत्तों के मसले पर शिवसेना शिंदे ग्रुप के कारपोरेटर्स ने जारहाना रुख इख्तियार कर लिया है। जालना शहर में आवारा कुत्तों का फौरी बंदोबस्त किया जाए, बसूरत दीगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में ही आवारा कुत्ते छोड़ दिए जाएंगे। इस तरह का सख्त इंतबाह शिवसेना के कारपोरेटर दुर्गेश खटोटेवाले ने दिया है। उनका कहना है कि शहर में तरक्याती काम जारी रहें, लेकिन कुत्तों के मसले पर भी संजीदगी से कदम उठाना ज़रूरी है।
جب تک برسر اقتدار افراد اس مسئلے پر ٹھوس موقف اختیار نہیں کرتے تب تک ہم اپنی مخالفت جاری رکھیں گے. یہ انتباہ شیو سینا शिंदे ग्रुप के कॉर्पोरेटर निखिल पगारे ने दिया. मला सर्वप्रथम हे सांगायचं आहे की भटक्या कुत्र्यांचा जो जो धुसमुस चालू आहे, लहान मुलांचा जीव चालला, म्हातारे कुत्रे बाहेर निघायला तयार नाहीये, संध्याकाळी 7 वाजले की लोक घाबरा लागले बाहेर निघाला. इतका मोठा हा प्रकार कुत्र्यांचा चालू आहे आणि तुम्ही विकास निधीवर बोलता. विकास तुमचा होत राहील, तुम्ही पहिलं कुत्र्यावरती काहीतरी करा. जोपर्यंत कुत्र्यावरती यांचा काही ठोस भूमिका घेत नाही तोपर्यंत आम्ही ह्या प्रत्येक विषयाला आजच्याही स्टँडिंगला विरोध केला. विकास कामाचा विषय बाजूला ठेवा आणि कुत्र्यांच्या मुद्द्यावरती बोला. जोपर्यंत कुत्र्यांचं काही ट्रीटमेंट तुम्ही करत नाही, जोपर्यंत व्यवस्था करत नाही तोपर्यंत आमच्या प्रत्येक विकास कामाला विरोध आहे. विकास होत राहील ना, इथं माणसाचा जीव चालला, लेकरांचा जीव चालला, ह्याला तुम्ही काहीतरी निर्बंध लावा ना. आमचं म्हणणं एवढंच आहे की कुत्र्यांसाठी तुम्ही पक्षपात बाजूला ठेवून तुमच्या प्रशासनावर वचक नसेल तर तुम्ही प्रशासनाची एक बैठक घ्या ना, कॉमन बैठक घ्या. त्याच्यामध्ये प्रत्येक प्रभागातले नगरसेवक बोलवा आणि त्याच्यावर काय करते तुम्ही चर्चा करा ना. गेल्या सभेमध्ये सांगितलं की पहिले ताबडतोब भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करा म्हणून. लोकांचे जीव चालले हो, याला कोण जबाबदार आहे? प्रशासन आणि सत्ताधारी. म्हणजे सत्ताधाऱ्यांच्या यांच्यावर लक्षच नाही, यांचे वचक राहिला नाही. काय हे फक्त कागदोपत्री आहे. कोणती एजन्सी काम करताना दिसते आपल्याला? शहरामध्ये बघा ना तुम्ही, किती कुत्रे झालेले, किती भटक्या कुत्र्यांचं कुठं निर्बंधीकरण चालू आहे. फक्त 10 कुत्रे उचलायचे आणि लोकांना दाखवायचे प्रशासनाला. काही त्याच्यात काही तथ्य राहिलेलं नाही, फक्त बिल उचलायचे आणि काम करायचे. शाजापुर में आज अचानक एक स्क्रैप के गोडाउन में भयानक आग लग गई, जिस पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर्स को सख्त जद्दोजहद करनी पड़ी. आग लगने का ये वाक़या वालुज इलाके में वाक़ शाजापुर में पेश आया, जहां कबाड़ के गोदाम में अचानक भयानक आग लग गई. आग ने कुछ ही देर में शिद्दत इख्तियार कर ली और पूरे गोदाम को अपनी लपेट में ले लिया. वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और निजी टैंकरों की मदद से भी आग बुझाने की भरपूर कोशिशें की गईं. इधर आग लगने वाली जगह के आसपास कई कंपनियां मौजूद हैं, जिसकी वजह से आग फैलने का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है. इसके पेश नज़र इलाके में एहतियाती तदाबीर बढ़ा दी गई थी. आग लगने की असल वजह अब तक मालूम न हो सकी, ताहम खुशकिस्मती से किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला सामने नहीं आई है. शहर में जुराइम के वाक़यात में तेज़ी से इजाफ़ा होने लगा है. गुज़िश्ता दिनों सिडको इलाके में एक नौजवान पर क़ातिलाना हमले के बाद अब बीड़ बाईपास इलाके में एक वकील के कत्ल का मामला मंजर आम पर आया है. पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक गुज़िश्ता रात गांधेली फाटा के करीब एडवोकेट मिथिन भास्कर, जो कि आनंद नगर के रिहायशी हैं, उनकी लाश खूद में लथपथ हालत में पाई गई. ये वाक़या आधी रात के करीब पेश आया. शदीद ज़ख्मी हालत में पाए जाने के बाद उन्हें फौरी तौर पर घाटी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनकी तिब्बी जांच के बाद उनकी मौत की तस्दीक कर दी. वाक़े की इत्तला मिलते ही MIDC सिडको पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंच गई. इब्तदाई तहक़ीक़ात में लूटमार के इरादे से हमले का शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है. ताहम मक़तूल की 2 व्हीलर गाड़ी और दीगर सामान महफूज हालत में मिलने से किसी साजिश के इम्कान को भी खारिज नहीं किया जा सकता. फॉरेंसिक जांच में गाड़ी पर 2 मुख्तलिफ अफराद के निशानात मिलने के बाद पुलिस ने तफ्तीश तेज़ कर दी है. मुसलसिल पेश आ रहे ऐसे वाक़यात से शहर में खौफ व हिरास का माहौल है और लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठने लगे हैं. खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर. महसूल प्रबोधनी के कामकाज का इलाकाई कमिश्नर जितेंद्र पापड़कर ने लिया जायजा. सरकारी अफसरान और मुलाजमीन को दी जाने वाली तरबियत में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने की मुतल्लिक़ा अफसरान को दी हिदायत. मेयर समीर राजूरकर की सदारत में टूरिज़म मैनेजमेंट कमेटी की अहम मीटिंग मुनक़िद. अंदरूने 8 यौम टूरिज़म हेल्प डेस्क शुरू करने मुतल्लिक़ा अफसरान को मेयर ने दी हिदायत. पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफे से मुताल्लिक़ शहर में गश्त करने लगी हैं अफवाहें. गाड़ी मालिकान में शदीद बेचैनी. पेट्रोल डीजल के स्टॉक करने गाहकों की पेट्रोल पंप पर लगने लगी हैं लंबी लंबी कतारें. शहरियान से सब्र व तहम्मुल से काम लेने इंतज़ामिया ने की अपील. और
वालूद सनती इलाके से करीब मौजूद साजापुर में एक स्क्रैप गोडाउन में लगी भयानक आग, पूरा इलाका हो गया धुआं। आग पर काबू पाने फायर फाइटर्स को करनी पड़ी सख्त जद्दोजहद। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।